Hello and welcome to next video on physics. So in this video we are going to understand or carry forward the graph. This is second segment of the graph type. Okay, so till now we know what is we have learned what is graph of uniform motion for distance time graph for uniform motion. Let's begin with the second example of graph, and that is distance time graph for non-uniform motion. So before we begin with this graph, I want you all to make it very clear. Uniform motion means equal distance in equal time, and non-uniform motion means unequal distance in equal interval of time, right? So we'll see the graph with the help of a very simple recordings or table. So we have time in second as 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35. Okay, and distance covered by that particular body in this time interval is given in the second column as 0. For 5 second it was 7, 10 second it was 12, 15 second it was 20, 20 second it was 30, 25 second was 41, 30 it was 50 and 35 it is 58. So if we clearly observe in the first column, time interval is fixed. Okay, the time interval is increasing by the factor of 5. 5 से वो increase हो रहा है, हर 5 सेकेंड का रीडिंग नोट किया है. बट डिस्टेंस ऑब्जर्व करो, डिस्टेंस क्या इक्वल फैक्टर से बढ़ रहा है क्या? 0 के बाद 7 है, 7 के बाद 12 है, 12 के बाद दैट इज 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 41. मीन्स वन थिंग इज क्लियर कि distance covered is not equal in equal interval of time, right? So of course from this table only we can make out that it is non-uniform motion. Let's see how does the graph of non-uniform motion looks like. Okay, so for that we take a graph paper, we'll draw x and y axis for that respectively. Now on x axis we'll take the time interval of 5 right, because 5 से वो increase हो रहा है. So we'll start with 0, then it is 5, then it will be 10, next will be 15, next 20, next 25, next 30 and 35. On y axis, now you might be wondering y axis पे क्या ले सकते हैं, right? Because distance covered तो equal नहीं है. So for that clearly observe it, क्या क्या distance cover, I mean what are the numbers in this distance covered जो उन्होंने दिया है? It is 0, 7, 12, 20, 30, 41, 50 and 58. So it is not fixed, right? Like 7, 14, 21, 28, 35 ऐसा fix नहीं है. तो क्या ले सकते हैं? तो लेट्स से y एक्सेस पे हम लोग मैक्सिमम नंबर जो भी वन बॉक्स का अलाउ कर सकते हैं वो लेते हैं, दैट इज 10, 20, नेक्स्ट इट विल बी 30, 40, 50, 60. ओके, ये लिया. नाउ हाउ डू वी प्लॉट दिस नंबर्स? ओके, नाउ आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड हर एक बॉक्स ऑन दिस ग्राफ पेपर ओके इज कंप्राइजेस ऑफ 1 यूनिट, और 1 यूनिट में मतलब 10 छोटा छोटा लाइन होता है. सो 1 यूनिट इज 10 सेंटीमीटर. सो इसको कैसे प्लॉट करूंगा? हाउ डू वी स्टार्ट प्लॉटिंग दिस ग्राफ? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. टाइम कितना है? 0, डिस्टेंस कितना है? 0, तो 0,0 किधर आएगा? ओरिजिन उधर ही आएगा. नेक्स्ट, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 5,7. सो फॉर दिस बच्चे लोग लुक एट 5 ऑन एक्स एक्सिस. ओके, इट्स द फर्स्ट बॉक्स एंड 7 ऑन वाई एक्सिस. नाउ यू माइट बी वंडरिंग 7 तो है ही नहीं. अच्छा, वाई एक्सिस पे ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर 0 है, नेक्स्ट 10 है, तो 0 से 10 के बीच में 10 छोटा छोटा लाइन रहेगा. तो 7 किधर आएगा? 0 से 7 लाइन ऊपर, या फिर 10 से 3 लाइन्स नीचे. सो दिस इज समवेयर वी प्लॉट दिस पॉइंट, and this point will be of course 5,7. okay, this is how we plot the coordinates if you remember. Let's see next point. Next point is 10, 12. so 10 तो clearly x axis पे है, and 12 किधर आएगा? तो 12 किधर आएगा? 10 to 20 ये वाले बॉक्स में, बराबर, ये वाले बॉक्स के बीच में गई. तो सो 12 कितना ज़्यादा है 10 से? 2, तो 10 से 2 लाइन ऊपर. सो दिस पॉइंट विल बी 10, 12. ओके, इट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट पॉइंट इज 15, 20. सो 15 इज क्लियरली ऑन द एक्स एक्सिस एंड 20 भी है. दिस वन इज वेरी सिंपल. दिस इज 15, 20. नेक्स्ट 20, 30. दिस इज ऑल्सो सिंपल. 20, 30. वी कैन डायरेक्टली प्लॉट फ्रॉम कोऑर्डिनेट. नेक्स्ट इट्स बिट चैलेंजिंग. 25, 41. सो लुक एट 25 ऑन एक्स एक्सिस. ओके, वी हैव, एंड 41 किधर होगा? 40 के एक लाइन ऊपर, right? So this will be 25, 41. okay, after this 30, 50. so how do we get 30, 50? It's also very simple, clearly visible. and last is 35, 58. 35 है, 58 किधर आएगा? 60 के 2 लाइन नीचे. so this point is 30, 58. okay, so this is how we plot the coordinates. अब ये सारे coordinates को हम लोग will try to join, okay, if possible, whether they can pass बाय स्ट्रेट लाइन. इससे स्ट्रेट लाइन जाएगा क्या? नहीं जाएगा. ऑब्जर्व दिस पॉइंट्स वेरी क्लियरली, नहीं जाएगा. सो विल जॉइन 2 पॉइंट्स एट अ टाइम.
So what do we come out or what do we conclude by this? If you observe this graph clearly, it is not a straight line. Graph is not a straight line. Okay, and when the graph is not a straight line means it is not a linear graph. Okay, and that also explain it is not a uniform motion, so it's a non-uniform motion. So once again if I want to conclude, क्या लिया था हम लोग ने? टाइम को हम लोग ने x एक्सिस पे लिया, डिस्टेंस को हम लोग ने y एक्सिस पे लिया, एंड द ग्राफ का नेचर इज द नॉन लीनियर ग्राफ मीन्स इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस शोज दैट इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो स्ट्रेट लाइन आया मतलब लीनियर, लीनियर मतलब यूनिफॉर्म मोशन. स्ट्रेट लाइन नहीं आया, कोई भी एक रैंडम कर्व आया, यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, तो इट इज नॉन लीनियर एंड इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो दिस वाज सेकंड ग्राफ. Okay, now let's try and start with third type of graph, and that is about velocity time graph for uniform velocity. अच्छा, so इसमें क्या करेंगे? See, I want you all to understand very simply. We'll take an example. Suppose there is a train, okay, and that train is covering or moving with a constant fixed speed for 5 hours. Okay, means वी हैव रिकॉर्ड स्टार्टेड द मोशन एंड हम उस ट्रेन का मोशन ट्रैक कर रहे हैं. तो उसमें क्या पता चलता है, हर एक आवर में उसका ट्रेन का स्पीड इज फिक्स 50 किलोमीटर पर आवर है. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? फिक्स है. अब वेलोसिटी फिक्स है तो ऐसे टाइप के ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे? ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद सेम, विल ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस सबसे पहले. नाउ टेल मी, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं? वी ऑलवेज टेक एक्स एक्सिस पे वी विल ऑलवेज टेक टाइम, and here in this case time is in hours and velocity will be on the y axis. Now how do I start? How do I plot? See, time को observe करो, it is 1 2 3 4 and 5. तो 5 इंटरवल ऑफ टाइम का रिकॉर्डिंग दिया है, तो मैं क्या करूँगा? 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे x एक्सिस पे टाइम लिया एंड y एक्सिस पे क्या है? 50. हर एक का स्पीड सेम है. अब डायरेक्ट 50 तो नहीं ले सकते, सो व्हाट डू वी टेक? 10 20 30 40 एंड 50. नाउ बच्चे लोग, यहाँ पे मुझे प्लॉट करना है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को. सो ऑब्जर्व करो, फर्स्ट वाला रो क्या बोलता है? व्हेन द टाइम इज 1 द वेलोसिटी इज 50. सो 1,50 विल बी समवेयर हियर. नेक्स्ट टाइम इज 2, इट इज 50, 2,50 इधर होगा. 3,50 विल बी वंस अगेन सेम, 4,50 एंड 5,50. सो वेर एवर वी हैव रिच ऑन द टॉप दैट इज 50. अगर उसको ज्वाइन करूँ, ओके, so this is a straight line, but this straight line and the previous straight line जो uniform motion में मिला था वो अलग है, because that was passing through origin. Now this is this straight line and it is parallel to time axis, मतलब x axis says that the velocity is fixed, the velocity is constant. Okay, तो ये ग्राफ हम लोग ने इस तरह से प्लॉट किया. Now what to learn out of this? ये तो हम लोग क्लियरली टेबल में जो दिख रहे थे वही यहाँ पे हम लोग ने ग्राफ में भी देखा. कुछ नया क्या मिल सकता है इससे? वेल, इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग ने दो कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे, एक था स्लोप एंड सेकेंड वाज एरिया. फर्स्ट ग्राफ में हम लोग ने स्लोप यूज़ किया, यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज़ एरिया. नाउ व्हाट विल एरिया गिव टू अस? लेट्स अंडरस्टैंड. सो इफ़ आई टेक, लेट्स से इस ट्रेन ने 2 आवर्स से लेके 4 आवर्स के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये अगर फाइंड करना है, मतलब देखो ये जो मैंने शेड किया है वो वाला पार्ट, तो कैसे फाइंड करूँगा? सो फॉर दैट, whenever we want to find distance, we're going to find or we're going to use the concept of area. So distance covered is equals to area of rectangle. Okay, always remember, whenever we use slope we get velocity or acceleration. Whenever we want to find distance or whenever we want to find distance or anything from the graph, okay, we'll find the area. Distance find करने के लिए हम लोग area find करेंगे. Now remember, what was formula for speed या velocity? Speed is equals to distance upon time. स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है. यहाँ पे ध्यान से देखो, टाइम किधर है? एक्स एक्सिस पे. डिस्टेंस है नहीं फाइंड करने का, और वाई एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी मतलब स्पीड. तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, राइट? एंड इसी तरह हम लोग एरिया फाइंड करते हैं. क्यों? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब एक है होगा टाइम और दूसरा होगा वेलोसिटी. वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देगा हमको? सेम, इट विल बी डिस्टेंस. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड की जगह पे वेलोसिटी लिखा. वंस अगेन आई एक्सप्लेन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड इंटू टाइम किया तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? इट विल बी ऑफ कोर्स सिंपल, अ डिस्टेंस कवर्ड. तो ध्यान से देखो शेडेड रीजन को, रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? 0, ऊपर 50 तक जा रहा है तो इट इज 50
एंड 2 से लेके 4 के बीच में कितना गैप है 2, सो 52 सा कितना आएगा 100, सो 100 किलोमीटर इज द आंसर फॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर ट्रेन। ओके, तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उस ट्रेन ने 2 से लेके 4 आवर्स इस टाइम इंटरवल के बीच में। सो दिस वर द 2 ग्राफ बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।